السلام علیکم دوستو، میرا نام مظفر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین ٹیلی۔ ایک وقت تھا غلام پرتھا کا، جہاں انسان کوڑیوں سے لے کر اشرفیوں کے دام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ انسانوں کی بولیاں لگتی تھی، غریب امیروں کے تلوے چاٹا کرتے تھے، غلاموں کے بازار سزا کرتے تھے۔ ایک دن انہی غلاموں کے بازاروں میں سے ایک ایسا غلام نکلا جو آگے چل کر بھارت کا سلطان بن گیا۔ یہ غلام تھا غیاث الدین بلبن۔ بلبن کی کہانی اتنی روچک ہے کہ پوری ویڈیو دیکھے بنا آپ اپنی جگہ سے نہیں ہل پاؤ گے۔ دوستو، ہندوستان میں مسلم حکومت کے پچھلے ایپیسوڈ یعنی ایپیسوڈ 6 میں ہم نے رضیہ سلطان کا اتہاس دیکھا تھا۔ رضیہ سلطان 1236 سے 1240 تک حکمرانی کرتی ہیں، مگر 1240 میں ترک سردار اسے ہٹا کر بہرام شاہ کو دلی سلطنت کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ بہرام شاہ ترک سرداروں کے خلاف ہونے کی کوشش کرتا ہے، مگر ترک سردار اسے مروا کر علاؤالدین مسعود شاہ کو تخت پر بیٹھا دیتے ہیں۔ ستا کا نشہ کتنا نشیلا ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بلبن التتمش کے پوتے ناصر الدین محمود اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر سلطان علاؤالدین مسعود شاہ کو قتل کر دیتے ہیں اور تخت پر صرف 17 سال کے ناصر الدین محمود کو سلطان بنا کر بیٹھا دیا جاتا ہے۔ ناصر الدین محمود سلطان تو بن جاتا ہے، مگر اس کا من ہی نہیں ہوتا ہے حکومت کرنے کا، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور شخص ہی سلطنت کو اپنے اشاروں سے چلا رہا ہوتا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ دھیان سے ویڈیو دیکھتے رہیے۔ دوستو، ناصر الدین محمود ایک مضبوط دینی ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں۔ دنیا سے زیادہ وہ دین سے لگاؤ رکھتے تھے۔ ایک سلطان ہوتے ہوئے وہ اپنی عبادتوں میں اس قدر مشغول رہتے کہ ان کے پاس حکمرانی کرنے تک کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنا، ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا ان کی دنچریا تھی۔ ایک سلطان اگر چاہے تو دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز اس کے سامنے لا کر رکھی جا سکتی ہے، مگر آپ حیران ہوں گے کہ ناصر الدین محمود ایک ایسی بزرگ ہستی تھی جو سلطان ہو کر بھی قرآن کی نقلیں بنا کر اور ٹوپیاں سی کر اپنا اور اپنے پریوار کا گزارا چلاتے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی صرف ایک ہی بیوی تھی اور وہی بیوی گھر کا سارا کام کرتی اور کھانا بناتی تھی۔ ان کے یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں تھا۔ سوچئے، ایک سلطان ہو کر ایسی زندگی جی رہے تھے ناصر الدین محمود۔ دوستو، التتمش سے لے کر ناصر الدین محمود تک سلطنت میں ترک سرداروں کی منڈلی کا بول بالا تھا۔ جو بھی ان کے خلاف ہوتا، یہ منڈلی اسے راتوں رات رستے سے ہٹا دیتی تھی، چاہے وہ سلطان ہی کیوں نہ ہو۔ سلطان ناصر الدین محمود بہت نرم مزاج کے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطنت میں حکومت کے لیے کوئی فساد ہو، اسی لیے انہوں نے سلطنت کی باغ ڈور ان ترک سرداروں کو سونپ رکھی تھی اور خود اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ انہی ترک سرداروں میں غیاث الدین بلبن نامی ایک اور ترک سردار تھا جو اتنا تیز اور عقل مند تھا کہ کچھ ہی سمے میں وہ سلطان ناصر الدین محمود کے اتنے قریب آ گیا کہ ناصر الدین محمود نے اسے اپنا نائب مقرر کر لیا۔ دوستو، اس وقت جو شخص نائب کے پد پر ہوتا تھا وہ سلطان کے بعد سلطنت کا سب سے طاقتور شخص مانا جاتا تھا۔ سلطان ناصر الدین محمود سے بلبن کی یہ نزدیکی تب اور بڑھ جاتی ہے جب بلبن اپنی بیٹی کا نکاح سلطان ناصر الدین محمود سے کروا دیتا ہے۔ بس یہیں سے اصلی پکچر شروع ہوتی ہے۔ سلطان سے بلبن کی یہ نزدیکیاں ترک سرداروں کو کھٹکنے لگتی ہیں۔ سوئے ہوئے ترک سردار واپس جاگ اٹھتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ ضرور بلبن کوئی بڑا کام سر انجام دینے والا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ترک سرداروں نے بلبن کے خلاف ایک ایسی سازش رچی کہ سلطان ناصر الدین محمود خود بلبن کو سلطنت سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ آخر کیا تھی وہ سازش، ضرور جانیں گے، مگر اس سے پہلے ہمیں بلبن کا بیک گراؤنڈ دیکھ لینا چاہیے۔ دوستو، غیاث الدین بلبن کا جنم 1210 سے 1216 عیسوی کے بیچ ایک ترک قبیلے میں ہوتا ہے، جہاں بلبن کے پتا اس قبیلے کے سردار ہوتے ہیں۔ اس قبیلے پر منگول حملہ کر دیتے ہیں اور منگول بلبن کو پکڑ کر غلاموں کے بازار میں لے جا کر بیچ دیتے ہیں، جہاں خواجہ جمال الدین بصری نامی شخص بلبن کو خرید کر دلی لے آتے ہیں۔ بلبن کی بدھی اتنی تیز تھی
कि देखने वाला हर कोई बलबन को खरीदना चाह रहा था, मगर उस वक्त के सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को खरीद लेते हैं। सुल्तान इल्तुतमिश बलबन की होशियारी देखकर उसे अपना निजी नौकर बना लेता है। धीरे धीरे बलबन अपनी काबिलियत के दम पर सुल्तान को इस कदर प्रभावित करता है कि सुल्तान इल्तुतमिश बलबन को अपने 40 खास तुर्क सरदारों के गिरोह में शामिल कर लेता है। आप अंदाजा लगाइए कि बलबन कैसे एक गुलाम से एक सल्तनत के सुल्तान के करीब पहुंच जाता है। गयासुद्दीन बलबन रजिया सुल्तान के दौर में अमीर शिकार के ओहदे पर पहुंचता है। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के दौरे हुकूमत में अमीर हाजिब यानी सुल्तान का मैनेजर या सेक्रेटरी बनता है। फिर नासिरुद्दीन महमूद के जमाने में नायब के पद पर आ पहुंचता है। माने के बलबन सल्तनत में किंग मेकर की भूमिका निभा रहा था। ये सब वो अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करता है, जबकि बाकी के तुर्क सरदार बस तुर्क सरदार ही बने रह जाते हैं। बलबन का यूं बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ना ही बलबन और तुर्क सरदारों में नफरत की आग भड़का रहा था। अब उस खतरनाक साजिश की बात करते हैं जिसकी वजह से नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को सल्तनत से बाहर कर दिया था। असल में जब तुर्क सरदारों को लगने लगा कि बलबन हमसे आगे बढ़ रहा है और अगर ये कहीं सुल्तान बन गया तो हमारी खैर नहीं, इसीलिए तुर्क सरदारों ने बलबन का पत्ता साफ करने की साजिश रची। तुर्क सरदारों में एक सरदार इमामुद्दीन रेहान जो हिंदू से मुसलमान बना था, सभी तुर्क सरदारों को अपने साथ लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को बलबन के खिलाफ भड़का देता है। वो सुल्तान से कहता है कि बलबन आपसे सल्तनत छीनने की साजिश रच रहा है और कभी भी आपकी हत्या कर सकता है। बस सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद उन सरदारों की बातों में आ जाते हैं और बलबन को सल्तनत के हर पद से हटाकर रेहान को नायब का पद दे देता है। तुर्क सरदार खुश हो उठते हैं, मगर बलबन भी कहां हार मानने वाला था। बलबन धीरे धीरे अपनी ताकत मजबूत करता है और कुछ तुर्क सरदारों को अपने साथ मिला लेता है। कुछ ही वक्त बाद बलबन अपनी बेगुनाही साबित करके सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से कहता है कि या तो मुझे वापस नायब का ओहदा दो और रेहान को हटाओ या जंग के लिए तैयार हो जाओ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद फिर से कोई फसाद ना हो इसलिए रेहान को हटाकर वापस बलबन को अपना नायब मुकर्रर कर लेता है। अब बलबन इतना ताकतवर हो जाता है कि सल्तनत की बागडोर उसके हाथों में आ जाती है और तुर्क सरदार देखते रह जाते हैं। सन 1265-66 में नासिरुद्दीन महमूद की मौत हो जाती है। चूंकि नासिरुद्दीन महमूद के कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी सल्तनत अब बलबन के हिस्से में आ गिरी। बलबन अब सुल्तान था। तुर्क सरदारों में हाहाकार मच गया कि भागे तो भागे कहां। इतिहासकार लिखते हैं कि बलबन इतना कठोर नेचर का सुल्तान था कि वो अपने दरबार में ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी दरबारी को हंसने देता था। हमेशा सीरियस रहता और शराब को तो इस कदर बैन किया कि कोई अगर शराब पी लेता तो कोड़े मार मार कर उसके खाल उधेड़ दी जाती थी। बलबन वैसे तो दीनदार सुल्तान था और वो अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। ये शब्द आपने कई फिल्मों या ड्रामों में सुना होगा। इसका मतलब होता है खुदा की परछाई। यानी बलबन कहता था कि अल्लाह ने मुझे खास तौर पर सुल्तान बनाकर भेजा है और मैं पैगंबरों के बाद दुनिया की सबसे महान हस्ती हूँ। इसके अलावा बलबन ने अपनी सल्तनत में कुछ गैर इस्लामी रीति रिवाज भी चला रखे थे। जैसे बलबन अपने दरबारियों से अपने आगे सिजदा करवाता था, यानी दरबारी सुल्तान बलबन के सम्मान में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान बलबन के आगे सर झुकाते थे। इसके अलावा बलबन ने पायपोस नामी रिवाज भी चलाया हुआ था, जिसमें हर दरबारी सरदार सुल्तान बलबन के पैर के अंगूठे या कपड़े को झुककर चूमते थे, जैसे आपने अर्तुगरुल ड्रामे में देखा होगा। ये सब गैर इस्लामी रीति रिवाज थे। इसके साथ बलबन ने फारस के नवरोज का त्योहार यानी न्यू ईयर का त्योहार भी अपनी सल्तनत में राइज किया हुआ था। दोस्तों, बलबन सुल्तान तो बन गया, मगर अब उसके सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां थी। एक मंगोल, दूसरा तुर्क सरदार और तीसरे वो मेवाती राजपूत जो मुसलमानों को लूटते और मुस्लिम औरतों की इज्जत पर हाथ डालते थे। दोस्तों, बलबन ने पहले भी मंगोलों के हलाकू खान को धूल चटाई थी और सुल्तान बनने के बाद भी मंगोलों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बलबन की सल्तनत पर हाथ डाल सके। बलबन के सुल्तान बनने के बाद उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तुर्क सरदार ही थे, क्योंकि अगर बलबन उन्हीं तुर्क सरदारों की मंडली से निकलकर सुल्तान बन सकता है तो बाकी के तुर्क सरदार क्यों पीछे रहेंगे।
वो भी मौका पाकर बलबन को खत्म कर सुल्तान बनने की ख्वाहिश रखेंगे, मगर बलबन ने इन तुर्क सरदारों को सर ही नहीं उठाने दिया। बलबन की सल्तनत में मेवाती राजपूत लुटेरों का आतंक सबसे खतरनाक समस्या थी। इनका आतंक इतना विकराल रूप ले चुका था कि ये दिन में भी मुस्लिम काफिलों को लूट लिया करते थे। यहाँ तक कि जब मुसलमान मर्द जुमे की नमाज पढ़ने में व्यस्त होते तो ये मेवाती राजपूत लुटेरे शहर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं को उठा ले जाते और जंगल में उनका बलात्कार करके बिना कपड़ों के ही छोड़ देते थे। इस समस्या का समाधान सुल्तान बलबन ने खूब महारत से किया। बलबन ने उन सभी ठिकानों को तहस नहस कर दिया जहां ये मेवाती राजपूत लुटेरे रहते थे। एक एक को पकड़कर गर्दनें उड़ा दी गई, खाल खींच ली गई और कुछ ही वक्त में बलबन ने इन मेवातियों का आतंक खत्म कर दिया। दोस्तों, इतिहास में बलबन जैसे सुल्तानों की कम ही मिसालें मिलती हैं। बलबन ने अपने बूढ़े और शहीद सैनिकों को नकदी पेंशन देने की शुरुआत की थी। बलबन की सल्तनत का मजबूत होना उसके जासूसी विभाग पर भी निर्भर करता था। बलबन ने अपनी सल्तनत में जासूसों का ऐसा जाल बिछा रखा था कि सल्तनत की हर छोटी बड़ी खबर या साजिश सीधे बलबन तक पहुंच जाया करती थी। बलबन खुद एक गुलाम हुआ करता था, लिहाजा उसने अपनी सल्तनत में ऐसा डर कायम कर दिया था कि कोई शख्स अपने गुलाम पर जरा भी जुल्म करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इंसाफ का हर जगह बोलबाला था। सन 1285 ईस्वी में मंगोलों से जंग करते हुए बलबन का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मोहम्मद शहीद हो जाता है। अपने बेटे की मौत के दुख ने बलबन को अंदर से खत्म कर दिया था। बलबन का दूसरा बेटा बुगरा खां सल्तनत संभालना ही नहीं चाहता था, वो बंगाल की सूबेदारी में ही खुश था। अतः 1286 ईस्वी में बलबन अपने पोते के खुसरो को सुल्तान बना देता है और 1286 में ही 20 साल की हुकूमत के बाद बलबन की मौत हो जाती है। बलबन की मौत के बाद वो तुर्क सरदार फिर उठ खड़े होते हैं और कैखुसरो को गद्दी से हटाकर बलबन के दूसरे पोते कैकुबाद को गद्दी पर बैठा देते हैं। कैकुबाद शराबी और लड़कियों का आदी होता है। कुछ ही वक्त बाद कैकुबाद को लकवा मार जाता है और फिर तुर्क सरदार कैकुबाद को गद्दी से हटाकर उसके सिर्फ 3 साल के बेटे क्यूमर्स को सुल्तान बना देते हैं। बस ये क्यूमर्स गुलाम सल्तनत का आखिरी सुल्तान साबित होता है। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 3 साल के सुल्तान क्यूमर्स को कत्ल करके गुलाम सल्तनत का अंत कर देता है और भारत में खिलजी सल्तनत की नींव रखता है। अगले एपिसोड में हम खिलजी सल्तनत शुरू करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शुक्रिया।